सब सही जा रहा था लेकिन यहाँ पर इसने हक दिया है। बट आई एम सॉरी टू से दिविजा, तेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था तो चीजें पीसफुली भी हैंडल कर सकती। लड़का लड़की आपस में ही लड़े जा रहे हैं, इससे पता है क्या अचीव होगा। So yo, what's up? Welcome back to another video. और आज I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? We both instead wear this bracelet. By this reel ये कहना चाहती है कि एक लड़की की मर्जी हो सकती है कि उसे ये सब पहनना है कि नहीं। After all, it's just an ornament, right? And ये रील उसका खुद का पर्सनल ओपिनियन था, ना कि वो बोल रही थी कि तुम ये सब पहनो ही मत। The only thing I don't get is that Miss and Mrs. वाला thing. If you know, let me know in the comment section. ये सब समझने के बाद भी अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई अगर मेरी पत्नी ये सब नहीं पहनेगी तो वो पता कैसे चलेगा कि वो शादीशुदा है। भाई गेट प्रोग्रेसिव एंड यू कांट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग जो तू चाहता है स्लैश जो तू चाहती है। इट अप्लाइज फॉर बोथ एंड या आई एग्री कि ऐसे कुछ लोगों के चक्कर में हम पूरे मर्द समाज को डिमीन नहीं कर सकते। बट लेट मी स्टेट अ फैक्ट कि ये थिंकिंग आ कहां से रही है। तो आज से कुछ साल पहले देयर वाज अ पुरुष प्रधान समाज जिसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट करके कर दिया था कि पुरुष इज लाइक द टॉप एंड द फीमेल इज लाइक उनकी नौकर, या फिर उनको बहुत ही लोअर वैल्यू दी जाती थी, जहां पर लड़कियों की इज्जत नहीं होती थी एंड उनपे बहुत ज्यादा ज्यादती होती थी। डोंट यू थिंक कि फेमिनिज्म के नाम पे अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब हमारी बारी है कि हम लड़कों के साथ ऐसा करेंगे। तो भाई इट्स नॉट अबाउट बदला एट ऑल, ये पढ़ लो पहले। नो, हेटिंग men is not feminism. Feminism is a movement and ideology focused on achieving the social, political and economic equality of the sexes. It advocates for the equal rights and opportunities for everyone regardless of gender and seeks to dismantle the patriarchal system of inequality and discrimination which also harm men. तो आर यू फेमिनिस्ट? मैं क्यों फेमिनिस्ट हूँ भाई? लड़की फेमिनिस्ट है, मैं नहीं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ, इसमें फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट हम टर्न ही फीमेल से आता है, तो जो लड़की फेमिनिस्ट बन सकती है, लड़का थोड़ी फेमिनिस्ट बन सकता है। मैं तो फेमिनिस्ट। क्या आप बने रहो, उससे मैं क्या बोलूं? भाई feminism is not a trend and it's not only related to women. Feminism is a word for equal rights for both gender, ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए, and it can be used for empowering women. तो प्लीज जितनी भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली देने वाली है ना, फेमिनिज्म के बारे में रिसर्च करके आ जाओ पहले। प्लीज डोंट यूज फेमिनिज्म एज अ ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड के नाम पे लोगों ने अपने बायो में महादेव या कृष्ण जी का नाम लगा लगा के लड़कियों के पोस्ट में आके रांड क्या है ना, उस चीज के ऊपर क्रेजी दीप ने वीडियो भी बनाई है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर जाके। Men call women Rani openly on the internet and also in real life because they've learned it from their parents, from their fathers. They have seen their parents calling their daughters Rani. They have seen their fathers calling their mothers Rani. And mothers also go on to call their daughters this word. My followers were called this word by their parents when they shared that they got molested. They were called this word for not keeping the cups in the sink, for having a boyfriend, for rejecting a boy. Turns out just existing as a woman makes you a Rani. So no, being a Rani doesn't mean you're a sex worker. It just means that you're a woman. Women are being called this word for doing anything and everything. And that's why I don't feel bad about it, because it doesn't mean anything bad in my opinion. It just means that the person who is calling me this word feels helpless, that they can't control me anymore. I like that. I don't want to be controlled. I want to be independent and free. I want to be a Rani. Because if I'm not seen as a Rani, that means that I'm actually getting control. That I can choose how I live my life. And that is actually worse than being a Rani in my opinion. भाई सब सही जा रहा था लेकिन यहाँ पर इसने हक दिया, ये तो सीधा सीधा एक्सेप्टेंस हो गई। मतलब इफ तुम एक गलत वर्ड जो कि एक ऑलरेडी क्लासिफाइड वर्ड है फॉर प्रोस्टिट्यूट्स उसे सेल्फ क्लेम कर लोगे, दैट इज नॉट गोना हेल्प एंड इट्स गोना गिव यू अ बैकलैश एज वेल। आई गेट हर पॉइंट भाई कि वो क्या कहना चाह रही है। मुझे तो डर इसकी वो वाली ऑडियंस के लिए लगता है जिसके पास दिमाग ही नहीं है, जो बस इसको डायरेक्टली सुनती है और वो मान लेती है कि ये क्या कह रही है, कि हमारी मम्मी ने जो मैं बोला तो वो मानेंगे और इसने जो बोला मैं करूंगी, वो चीज गलत है। एंड लड़के लोग तुम लोग क्या कर रहे हो? सब नहीं बट कुछ चूतिए फ्री फायर खेलने वाले नैरो माइंडेड लोग हैं जिन्हें एक्चुअली ग्रो होने की जरूरत है। मतलब कम से कम पढ़ाई के नाम पे मॉरल्स तो पढ़ लो भाई। एंड समाज में ऐसे के लोगों के चक्कर में पूरे मर्द समाज की इज्जत गिरी जा रही है। तो मैं और मेरी ऑडियंस में जितने भी हाई मॉरल के लोग हैं, हम सब सॉरी बोलना चाहते हैं टू ऑल द फीमेल हु हैव डेल्ट विद दिस। बस जो चीज गलत है वो गलत है। और रही बात मैन हेटिंग की, तो देखो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये टाइम है इक्वली साथ में आने का एंड एक्चुअली डू समथिंग टुगेदर। इफ हम सोसाइटी लेवल पे एक बड़ा डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हम सबको इक्वली आके काम करना होगा, ना कि सिर्फ एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा के। भाई सिंपल सा नहीं है, जस्ट कम टुगेदर एंड फाइट फॉर द रॉन्ग। एंड पता है अभी क्या हो रहा है? लड़का लड़की आपस में ही लड़े जा रहे हैं एंड इससे पता है क्या अचीव होगा? कुछ भी नहीं। मैं जनरली ऐसा कंटेंट बनाता नहीं हूँ, मैं मस्ती करता हूँ, बट डोंट यू थिंक कि हम अपनी सोच से पीछे जाते चले जा रहे हैं। जो चीजें पहले लड़कों ने करी सो करी, लेकिन अब चीजें बदला लेने से सुधरेंगी या फिर चेंज लाने से। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसमें हाउ आई फील कि हम एक सोसाइटी को एक्चुअली इंप्रूव कर सकते हैं। भाई अब तो देखो जो लोग जैसे हैं उनकी सोच नहीं बदली जा सकती, बट यू नो व्हाट वी कैन डू इज, ओके जस्ट टेक एग्जांपल कि एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 80% जो फ्रूट्स है वो सड़ चुके हैं एंड 20% आर एज गुड एज न्यू। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि वो 80% जो फ्रूट्स है उन्हें साइड में रख दो एंड जो 20% वाली बास्केट है उसमें नए 80% ले आओ। यू नो व्हाट आई मीन। एंड भाई अच्छे इंसान बनो एंड गेट नॉलेज अबाउट इक्वालिटी, इक्वल राइट्स एंड फेमिनिज्म, क्योंकि दिस वर्ड इज नॉट सोली डेडिकेटेड टू फीमेल, इट्स अबाउट मेन एज वेल। ऑल वी कैन डू इज भाई जो आने वाली जनरेशन है हम उन्हें सिखा सकते हैं कि हाउ टू
treat everyone equally, even animals, and then you will get ready for a better future. But I'm sorry to say, कुछ पेरेंट्स को आज की डेट में भी पेरेंटिंग का पी भी नहीं पता है. They need to go to a parenting coaching class because उनका गॉड कॉम्प्लेक्स खत्म होना बहुत जरूरी है. एंड देवेजा, तेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, तू चीजें पीसफुली भी हैंडल कर सकती थी, तू चीजें पीसफुली भी सिखा सकती थी, तू समझा सकती थी कि हाउ टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, नॉट टू हेट अ पर्टिकुलर जेंडर. तो भाई इफ तुम लोग समझ सको तो समझ जाओ कि फेमिनिज्म कभी सोनली लड़कियों के बारे में था ही नहीं. इट वाज हाउ वी सी द वर्ल्ड इक्वली फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एंड देयर इक्वल राइट्स. यू नो व्हाट, आई फील लाइक दीस क्रिएटर्स आर नॉट इवन फेमिनिस्ट, दे आर जस्ट रेज बेटर्स, दे जस्ट वांट देयर कल्ट. बस भाई ये भी तो एक कंटेंट क्रिएटर है एंड इन लोगों को भी अपना धंधा चलाना ही है. देखो ये सारे मेरे ओपिनियन थे, सोनली मेरे ओपिनियन थे, मेरे को कोई किसी के लिए हेट नहीं है एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू हेट एनीवन. इट्स जस्ट इफ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने थॉट्स कमेंट कर देना एंड मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.